हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा विधि। अभी बच्चे आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। आप इसको रीड कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अक्सर थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने एक क्वेश्चन सेंड किया, मैंने रीड किया क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में आ जाएगा तो इंस्टेंटली माइंड में क्या अप्रोच चलती है वो भी, और आप कितना फास्ट कर सकते हो वो भी, ठीक है। और बेसिक से करना पड़ जाए तो कैसे करना चाहिए ताकि टाइम सेव हो सके, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन, आई होप कि आपने रीड किया होगा क्वेश्चन, आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, मैच कीजिए आपका आंसर सेम है या डिफरेंट है। ओके, पहले मैं करवाना चाहता हूँ इसको, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ जाए तो आप कैसे अप्रोच यूज़ करेंगे, कैसे अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। देन मैं पूरा प्रोसेस भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना चाहिए। ठीक है, इसने कहा कि वी हैव टू बीकर्स ए एंड बी कंटेन वाटर एंड 100% एसिड रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स देर आर टू बीकर्स ए एंड बी विच सेपरेटली कंटेन्स प्योर वाटर एंड प्योर एसिड. Is that clear to all of you? Then he's saying the total capacity of A and B is 7:5. Let's this 7:5 is the total capacity of A and B, which means it is 7A and 5A. What is A? A is the variable. Whenever we denote ratio, we use X or something else, but in this question X is mentioned, so that's why I'm using A as a variable. So the total capacity of A and B is 7:5. That means 7A and 5A. A is some variable which have specific values. So now X liter of acid from beaker B is poured into beaker A. Then Y liter of solution from beaker A is poured into beaker B. After the entire operation, the concentration of acid and acid in both beakers is 30% and 70%. What is X ratio Y? So what is the theme of the question? He wants to know the ratio between X and Y. So can we see this? When X liter of acid is removed from beaker B, then this X has pure acid only. But when Y liter of the solution is removed from beaker A, then it contains both water and acid in the same ratio as it is in the solution. Okay, so we need to find the value of X and Y. Okay, first of all see my approach, then try your own, and then basic. Okay, if the value of A is 30% here, acid value, that means every solution in itself is 100%. If it contains 30% acid, that means it has 70% water, so the ratio of water and acid becomes 7:3 after the operation. This shows that the ratio of acid and water before the operation is also 7:3. That means X has definitely the value 3 ratio. We got the value of X, it is 3A. Now it is removed from B. The remaining value in B is 2A. As we can see that some amount is added to B, due to which the ratio of acid falls to 70%, which shows 70% of 2A is 1.4A, which means there is a reduction of 0.6A, and the reason of this reduction is this 30% acid. So the difference of concentration I can see is 40%. So the 40% of Y becomes 0.6, 100% of Y, or say Y becomes 1.5. It is quite easy to solve. The answer X ratio Y becomes 2:1. So if you know the concept, this hardly takes only 30 seconds. It's not a tough question at all. It's a basic question. You know the basic approach, you can solve very easily. Now I know it's been a while और आप लोगों को मेरे मेथड्स कभी समझ में नहीं आए हैं, वैसे भी मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस चीज़ को लेके, तो अब हिंदी में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट साउथ इंडिया से भी हैं, ये उनके लिए था, तो अब हिंदी में बेटा देखो इसमें क्या करना है। अब आप बेसिक पे ध्यान दें प्लीज़। आप जिस भी टीचर से पढ़े हैं, मुझसे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपके टीचर ने आपको एक बात बताई होगी कि सॉल्यूशन जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में बाहर निकलता है, उसी रेशियो में पीछे बचता है।
मैंने इस बात का कन्वर्ज यूज़ किया। अक्सर आप इस बात को भूल जाते हो, प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, आपके टीचर्स भी नहीं करते। चलिए मैं बताता हूँ मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, 80 लीटर मेरे पास प्योर मिल्क है। ऐसा मैंने अज्यूम किया कि प्योर मिल्क कितना है बेटा, 80 लीटर। ऑल राइट, मैंने क्या किया, 20 लीटर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया वाटर को। ओके, 20 लीटर वाटर मैंने ऐड कर दिया। तो बेटा ये सॉल्यूशन कितना बन गया, 100 लीटर का बन गया। और आप मुझे बता सकते हैं 100 लीटर में मिल्क का और वाटर का रेशियो क्या हुआ? आप कहेंगे सर 80 और 20 का रेशियो हुआ 4:1। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ बच्चे, अगर अब मैं कह दूं कि इस 100 में से 40 लीटर सॉल्यूशन विड्रॉ करो, बाहर निकालो, ओके, बाहर कर दिया मैंने, तो क्या आप कह सकते हो कि 40 का 40 लीटर मिल्क ही बाहर आएगा? इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि दोनों का मिक्सचर बना हुआ है। मिक्सचर में 4 हिस्से किसके हैं? मिल्क के। एक हिस्सा किसका है? पानी का। तो इस 40 में भी 4 और 1 हिस्सा ही तो बाहर आएगा ना बेटा। यानी 32 लीटर मिल्क बाहर आएगा और 8 लीटर पानी बाहर आएगा। पानी 20 है, 8 बाहर आ गया तो कितना बचा? 12 लीटर। पानी 80 है, 32 बाहर आ गया तो कितना बचा? 48 लीटर। यानी बचे हुए की रेशियो भी क्या बनी? 4:1। यानी बेटा अगर बचे हुए की रेशियो 4:1 है तो शुरुआत की रेशियो भी क्या थी? 4:1 थी। ये बात अगर आपके समझ में आए तो समझ जाएंगे, अगर ए में 30% यानी कि 7:3 में बचा तो इसका मतलब शुरुआत में भी क्या रेशियो थी? जब एसिड मिक्स हुआ, जब एक्स मिक्स हुआ एसिड, तब भी क्या रेशियो थी? 7:3 ही थी। और बेटा अगर शुरुआत में 7:3 थी तो इसका मतलब एक्स मिक्स ही 3 हुआ था। ये बात क्लियर हो गया आपको? इसका मतलब x का मान 3 है। इतना पॉइंट क्लियर है? अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर है, x का मान 3 है, तो आप मुझे बताओ b में तो 5 है, 5 में से 3 निकाल दिया, कितना बच गया? 2। अब मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये जो b है ना बेटा, 2a बचा हुआ है, ये एसिड है। अब बताओ b में एसिड कितना ऐड होगा? b के अंदर हमने क्या ऐड करना है? y ऐड करना है। अगर b के अंदर हमने y लीटर ऐड किया तो y क्या आ रहा है? y निकल के आ रहा है a से। a के अंदर 70% हिस्सा किसका है? पानी का। और 30% हिस्सा किसका है? एसिड का। तो y के अंदर ना एसिड जो वो सिर्फ 30% है। यानी 2a में एसिड जो ऐड होगा वो सिर्फ 0.3 y एसिड ऐड होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? जबकि जो 2a था ना बेटा, इस 2a के अंदर कुल अमाउंट कितनी ऐड हुई है? y ऐड हुई है। जबकि एसिड कितना बना? सिर्फ 0.3 y। लेकिन 2a के अंदर y ऐड होने से टोटल एसिड जो बन गया ना वो 70% बन गया। ये यहाँ लिखा हुआ है 70% बन गया। यानी कि 70% का मतलब क्या है? 0.7 बन गया। तो देखो y का कोफिशिएंट यहाँ 0.3 है और y का कोफिशिएंट यहाँ 0.7 है, तो दोनों के कोफिशिएंट में कितना डिफरेंस आया? 0.4 y का डिफरेंस आया बेटे। और ये देखो a का कोफिशिएंट कितना है? 1.4। यहाँ a का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो 2 में और 1.4 में कितना डिफरेंस आया? 0.6 a का। डेसिमल से डेसिमल खत्म। y का मान कितना आ गया? 6/4a विच मीन्स 1.5a। तो y का मान आपको मिल गया, x का मान आपको मिल गया। आप x और y की रेशियो निकाल सकते हैं। तो इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन, इट्स ए बेसिक क्वेश्चन। आपको जो सिखाया गया आप उस पर ध्यान रखें। किसी भी टीचर ने सिखाया, मेरे से सीखना जरूरी कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा। आप जहाँ से पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें, बस आप अपने बेसिक को अपने साथ रखें, ट्रिक्स के पीछे ना भागें, कैलकुलेशन पे ध्यान दें, इतना बहुत होगा आपके लिए। जो बच्चे पुराने हैं वो उनको पता है मुझसे कनेक्टेड हैं, डाउट भेजते रहते हैं, आगे भी भेज सकते हैं। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं बेटा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9466240290। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जो भी डाउट्स बने मैथमेटिक्स के अंदर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या कोई और, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन आपको वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करता रहूँगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग।